राजधानी शिमला में जहां मौसम तो सर्द है, लेकिन शिमला के संजोली मस्जिद को लेकर सियासा पारा गरम है। प्रिय दर्शक, আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আজিমউদ্দিন শেখ। আপনারা দেখছেন আখেরিগঞ্জ নিউজ। আজকে যে খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরব, বিশাল বড় বিক্ষোভ হিমাচল প্রদেশের সিমলার মসজিদ ভাঙ্গার দাবিতে। বেশ কিছু হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগেই এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে। সবচাইতে বড় প্রোটেস্ট, বড় বিক্ষোভ মিছিল দেখা যাচ্ছে সিমলা রাজধানী এলাকায়। হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে সুক্কু সরকারকে দেওয়া দুদিনের সময়সীমা শেষ। এদিকে সিমলা কোর্টে মসজিদের নির্মাণ নিয়ে জানানো হলো আজ সিমলার মিউনিসিপাল কোর্টে ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে এবং হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে দুই উকিলের কথোপকথন হয়। ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে যে উকিল, তিনি দাবি করেন যে জমিতে মসজিদ নির্মাণ হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি এবং তার কাগজপত্র তিনি কোর্টকে দেখিয়েছেন। কোর্ট বলছে, ওয়াকফ বোর্ডের উকিলকে জিজ্ঞেস করছেন কোর্ট, যে ছোট্ট একটা মসজিদ 5 তলা কিভাবে হলো, মসজিদের কিভাবে নির্মাণ হলো। এর জন্য শুধু মসজিদ কমিটি দায়ী নয়, ওয়াকফ বোর্ডকেও দায়ী করেন মিউনিসিপ্যালিটি কোর্ট। বিনা নকশা বিনা সম্মতি নিয়ে 5 তলা মসজিদ কিভাবে হলো। ওদিকে হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে মসজিদকে অবৈধ বলে মসজিদ হটানোর দাবি করছে তারা। হিন্দু সংগঠনের লোক বলছে, যদি মুখ্যমন্ত্রী এর ফয়সালা না করে তাহলে হিন্দু সংগঠনের লোক ভাববে তাদের কি করা উচিত। হিন্দু সংগঠন চাইছে এই ফয়সালার তাড়াতাড়ি শুনানো হোক। সিমলা মিউনিসিপাল কোর্টে 2010 থেকে এই মামলা চলছে। 2010 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত 14 বছর ধরে 45 বার শুনানি হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ফয়সালা হয়নি। মসজিদ এখন 5 তলা। মামলা চলছে 2010 সাল থেকে। মিউনিসিপাল কোর্ট থেকে নোটিশ করা হয়েছিল কাজ বন্ধ করার, কিন্তু কাজ হতেই থাকে। হিন্দু সংগঠন বলছে জমি সরকারের, হিমাচল প্রদেশের জমি। মুসলিম পক্ষের উকিল বলছে সম্পূর্ণ সম্পত্তি হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডের। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি। শেষমেশ কোর্ট যেটা ফয়সালা দিবে সেটা কিন্তু সবাইকে মানতে হবে, আর এটা মেনে নিতেও চেয়েছেন সবাই। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী 5ই অক্টোবর। ওয়াকফ বোর্ডের উকিল কি বলছেন বিস্তারিতভাবে শোনাবো আপনাদের, এবং আরও কে কি বলেছেন সম্পূর্ণ বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। এই খবর সূত্র ইন্ডিয়া টিভিতে খবরটা চলছিল, দেখছিলাম আমরা। সেই খবর অনুযায়ী আমি খবর পড়ে শোনালাম। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন সবাই শেয়ার করবেন আর লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটিকে ফলো করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। देखिए, मामले की मैं तो कोर्ट फीडिंग के बारे में बता सकता हूँ, मैं बाकी मामले के बारे में नहीं बताता। कोर्ट फीडिंग में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की प्रोसीडिंग चली हुई है। उसमें हमने नोटिस भेजा गया था, उसमें हमने रिप्लाई दिया, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स रिप्लाई दिया, और कमिश्नर साहब ने जे कंसर्न को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे 5 अक्टूबर को, उसके बाद हम उसका सप्लीमेंट्री रिप्लाई फाइल करेंगे। ये मामला जो है, ये अभी मालिकाना हक जो है वो क्या वक्फ बोर्ड के पास है, किसके पास है? मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड का ही है, दैट इज प्रूव्ड ऑन द रिकॉर्ड। ये वो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव्ड है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं है, हिमाचल सरकार। देखिए, मैं तो रिकॉर्ड के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। मैं कोर्ट का मामला है, मंत्री मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं कोर्ट के बारे में कह सकता हूँ, और कोर्ट में ये प्रूव हो चुका विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ
ये 47 से केस चल रहा है वो क्या इलीगल विद रिगार्ड टू इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर अभी फैसला होगा कोर्ट का। अभी रुक उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वो क्या अपनी स्टेटस रिपोर्ट क्या देते हैं जय साहब, उसके बाद ही होगा। कब तक स्टेटस रिपोर्ट देंगे? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। तो मेरा नाम बीएस ठाकुर है, मैं वक्फ बोर्ड को अदालत में जो जे कंसर्न्ड है उनको कहा गया है कि वो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में 5 अक्टूबर को। और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा कि हमें इस पार्टी बनाया जाए क्योंकि हम नेसेसरी पार्टी है, तो उस एप्लीकेशन का भी रिप्लाई फाइल होगा। क्या ओनरशिप का मसला सॉल्व हो गया? ओनरशिप का मसला ठीक है, 1947 से ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की है और उन्हीं के नाम से चली आ रही है। वो मौके के ऊपर जाके रिपोर्ट देंगे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। नहीं सर, 1947 से जो केस चला आ रहा था उसके मुताबिक क्या जो 2 बिल्डिंग फ्लोर्स है वो क्या लीगल है, क्या बोला गया? नहीं, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 1947 से लेकर के अब तक। लेकिन उसके जो 2 एक मिनट तो इशू क्या इशू जो ऊपर वाली फ्लोर्स का है, ऊपर वाली स्टोरीज का है, इशू वो है। इशू है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन ली गई थी कि नहीं, ओनरशिप का इशू कोई नहीं है। जो 4 फ्लोर्स बने हैं उसमें से कितने लीगल है कितने इलीगल, उसमें वो जे रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक देगा जी रिपोर्ट? वो 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ है, उस तक देगा, उस दिन देगा। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो सारी मस्जिद को सील किया गया है कोर्ट के अंदर। नहीं, ये नहीं मुझे पता, ये नहीं वक्फ बोर्ड ने कभी भी कहा है सर, ठीक है। तो बस इतना ये आज के दिन के लिए, बाकी 5 अक्टूबर को लगेगा, पता चलेगा। हाँ बताइए। नहीं, ओनरशिप को लेकर के इशू इसलिए नहीं है कि 1947 से टिल डेट तक वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है सब रिकॉर्ड्स में। सिर्फ जो फ्लोर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन, हाँ, उसके रिगार्डिंग वो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो लोकल की तरफ से जो कंप्लेंट हुई है वो हाँ, उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। स्टेट ऑफिस कह रहा है कि जो लैंड है वो ओन्ड बाय हिमाचल गवर्नमेंट है। नो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया हुआ है। ये मिसकंसेप्शन है आपकी। ऐसा बोर्ड की है, ये क्लियर है। ये क्लियर है। अब ये बताइए, जब मामला सुनवाई चल रहा था 2010 से, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? ये तो गवर्नमेंट एमसी शिमला बताएगी और ये गवर्नमेंट तो बताएगी, एमसी शिमला बताएगी। नो, हमने तो प्रेसिडेंट जो मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट को एनओसी दे दिया, उसने मैटर टेकअप करना था कॉर्पोरेशन के पास अप्रूवल के लिए, उसने किया भी, लेकिन उनको सैंक्शन नहीं मिली फॉर सर्टेन रीजंस। तो क्यों नहीं मिली, वो फिर पीछे हट गए, बैकआउट कर गए। तो अब उसके बाद वो मामला उनके बीच का है, वक्फ बोर्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लिटिगेशन जो हुई थी या एमसी की तरफ से जो, वो कब शुरुआत हुई थी? फर्स्ट लिटिगेशन तो क्योंकि हमें तो अब नोटिस आया, तो हम तो अभी का बता सकते हैं ना, पहले कब से प्रोसीडिंग चली हमें नहीं पता इस बारे में। अभी तो अभी इस डेट के लिए है। हाँ। तो इससे पहले जो नोटिस जो है मस्जिद को 34 नोटिस सर्व किए गए थे, वो तो सलीम टेलर को था ना, जो वहाँ रहते थे। जो वहाँ रहते, जो 2010 में जो नोटिस, हाँ, सलीम टेलर को था नोटिस। वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व नहीं था उसमें। ठीक है, तो